السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک نئی اور بڑی ہی عمدہ کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ۔ اس کتاب کے اندر جدید الفاظ ہیں، جدید مفردات ہیں، نئے انداز میں اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے، جس کو پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی بہت مزہ آئے گا۔ آئیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ اس سبق کے اندر انہوں نے اس میں اشارہ میں سے لفظ ھذا کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ ھذا یہ مذکر قریب کے لیے ہے، واحد مذکر قریب کے لیے ہے، یعنی کوئی چیز قریب ہے اور وہ مذکر ہے اور اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے۔ مذکر مطلب میل، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز قریب ہے اور وہ مذکر ہے اور اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم وہاں پر لفظ ھذا لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر صرف ھذا کا ذکر ہے، اس وجہ سے ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ آگے جو ذالکا تلکا وغیرہ آئے گا تو ہم اس کو وہاں پر بیان کر دیں گے۔ ہم نے یہ طریقہ اور یہ قاعدہ آپ کو کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر پہلا لفظ معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، تو پہلا مبتدا ہوگا اور دوسرا خبر ہوگا، یعنی جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنا لیں گے اور جو نکرہ ہے اس کو خبر بنا لیں گے اور اس کے ترجمے میں ہے آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ھذا، ھذا کے معنی ہوتا ہے یہ۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ھذا بیتن، ھذا بیتن، دیکھو تصویر میں بھی آپ دیکھیے جو قریب ہے یعنی گھر قریب ہے تو اس کے لیے ھذا لے کر آئیں۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ بیت یعنی گھر اور مسجد یہ سب قریب ہیں اور یہ سب مذکر ہیں، اس وجہ سے ھذا لے کر آئیں۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ باب مانے دروازہ۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے، کنجی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے، کنجی ہے۔ ھذا مکتب، ھذا مکتب، یہ میز ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا مکتب، یہ میز ہے۔ ھذا سریر، یہ بیڈ ہے۔ سریر کے معنی تخت بھی ہوتا ہے، بیڈ بھی ہوتا ہے۔ ھذا سریر، یہ بیڈ ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اب یہاں پر سوالیہ لفظ شروع ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر سوال و جواب کی طرز پر یہ سبق آگے شروع کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ سوال کرنے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں۔ لفظ کیا کی عربی کئی آتی ہے، ھذا بھی، ما بھی آتی ہے، حل بھی آتی ہے، حمزہ بھی آتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر لفظ کیا شروع میں آ جائے تو وہاں پر حل اور حمزہ لے کر آتے ہیں، اور اگر لفظ کیا بیچ میں آ جائے تو وہاں پر ما لے کر آتے ہیں، یا اس طریقے سے کہہ لیجئے کہ جس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو تو اس کے شروع میں اس سوال کے لیے حل اور حمزہ لے کر آتے ہیں، اور جس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہ دیا جا سکتا ہو وہاں پر ما لے کر آتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے، میں آپ سے کہوں کہ کیا یہ زید ہے، کیا یہ مدرسہ ہے، کیا یہ گھر ہے، تو آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دے سکتے ہو۔ تو یہاں پر سوال کرنے کے لیے آپ لفظ کیا کے لیے حل یا حمزہ لا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ سے یہ کہیں تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اسی صورت میں لفظ کیا چونکہ بیچ میں آیا، اس وجہ سے یہاں پر آپ حل اور حمزہ نہ لا کر بلکہ ما کو لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ما ھذا، ما کے معنی کیا، ھذا کے معنی یہ۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہ پہلے آ رہا ہے اور کیا بعد میں آ رہا ہے، اس وجہ سے ما لے کر آئے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔
हादा बैतुन, क्या ये घर है। अब यहाँ पर क्या शुरू में आ गया, इस वजह से हमजा लेकर आए। हादा बैतुन, क्या ये घर है। नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। नाम के माने क्या होता है बच्चों, हाँ। नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। मा हादा, ये क्या है। हादा कमीसुन, ये कमीस है, ये कमीस है। ठीक है। हादा सरीरुन, क्या ये तखत है या क्या ये बेड है। ला, नहीं। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। ला हादा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है। हादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। हादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। ला हादा कलमुन, नहीं ये कलम है। मा हादा, ये क्या है। हादा नजमुन, ये सितारा है। ठीक है बच्चों। और आगे देखते हैं। मा हादा, ये क्या है। मा हादा, ये क्या है। अब सवाल हो रहा है सब। अब आप जवाब दीजिए। मा हादा, ये क्या है। तो आप जवाब दीजिए हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। मा हादा, ये क्या है। हादा किताबुन, ये किताब है। मा हादा, ये क्या है। हादा कलमुन, ये कलम है। ये मश्क है, समझ लो, तमरीन है। ठीक है। मा हादा, ये क्या है। हादा बाबुन, ये दरवाज़ा है। मा हादा, ये क्या है। हादा बैतुन, ये घर है। मा हादा, ये क्या है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। तमरीन नंबर 2। हादा बैतुन, हादा बैतुन, क्या ये घर है। तो इसका जवाब क्या दोगे, क्योंकि ये घर है तो इस वजह से आप क्या कहेंगे। नाम हादा बैतुन, हाँ ये घर है। हादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। ला, नहीं। हादा कलमुन, ये कलम है। ठीक है। ला हादा कलमुन, नहीं ये कलम है। हादा कमीसुन, क्या ये कमीज है। नाम हादा कमीसुन, हाँ ये कमीज है। हादा नजमुन, क्या ये सितारा है। नाम हादा नजमुन, हाँ ये सितारा है। ठीक है। तमरीन नंबर 3 देख लें। इक़रा व उक्तुब, पढ़ो और लिखो। हादा मकतबुन, हादा मकतबुन, तो आपने मकतबुन के माने क्या पढ़ा था बच्चों। देखिए यहाँ पर आपने मकतबुन के माने आपने पढ़ा था मेज़। ठीक है। एक होता मकतबतु, एक होता मकतबतुन और एक होता मकतबुन। तो मकतबतुन के माना होता है लाइब्रेरी और मकतबुन के माना होता है मेज़। ठीक है। हादा मकतबुन, क्या है। हादा मकतबुन, ये मेज़ है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा कलमुन, ये कलम है। या आपको इस पर हरकत और हरकत व सकनात भी लगाना है, यानी आपको एराब भी लगाना है। तो हादा मकतबुन, यहाँ पर आखिर में तनवीन के साथ पेश लाएंगे। हादा मकतबुन, ये मेज़ है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा कलमुन, ये कलम है। हादा सरीरुन, ये बेड है। ठीक है। मा हादा, ये क्या है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हादा बैतुन, क्या ये घर है। ला, नहीं। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। मा हादा, ये क्या है। हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। और थोड़ा सा देख लेते हैं। मन, लफ्ज़ मन, इसका माना होता है कौन, ये भी सवाल के लिए आता है। जिस तरीके से माँ, ये गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता है, यानी गैर इंसान के लिए आता है। इसी तरीके से मन, ये इंसान यानी ज़वील उक़ूल के लिए आता है। यानी अगर किसी इंसान के बारे में हमें सवाल करना है कि ये कौन है, तो उसके लिए हमें मन का लफ्ज़ लाएंगे। और अगर किसी चीज़ के बारे में सवाल करना है जो कि गैर इंसान है, तो उसके लिए हमें माँ को लेकर आना है। ठीक है। तो मन हादा, मन के माने कौन, हादा माने ये, मन हादा, ये कौन है। मन हादा, ये कौन है। हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। तबीब के माने क्या होता है बच्चों, डॉक्टर। हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। मन हादा, ये कौन है। हादा वलदुन, ये लड़का है। मन हादा, ये कौन है। हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। देखिए आपने तालिब इल्म की अरबी आपने तिलमीज़ भी पढ़ी होगी, शागिर्द है उसकी अरबी, और अल मुतअल्लिम भी पढ़ी है फैज़ुल अदब में। लेकिन यहाँ पर देखिए तालिबुन एक नई अरबी है, समझ लीजिए। इस किताब में एक नई अरबी आपको मिल रही है। हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म है, ये स्टूडेंट है। हादा वलदुन, क्या ये लड़का है। ला हादा रजुलुन, नहीं ये मर्द है। ये आपको लड़का कैसे दिख रहा है, दाढ़ी वाड़ी है इसके अंदर, है ना, बड़ा भी दिख रहा है। हादा वलदुन, क्या ये लड़का है। ला, नहीं। हादा रजुलुन, ये मर्द है, नहीं ये मर्द है। मा हादा, ये क्या है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। मन हादा, ये कौन है। हादा ताजिरुन, ये ताजिर है। ताजिर माने तिजारत करने वाला। ठीक है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। हादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है। ला हादा कित्तुन, नहीं ये
बिल्ला है, कित्तुन माने बिल्ला, ठीक है। हादा हिमारुन ये गधा है, हादा हिमारुन ये गधा है। हादा हिमारुन क्या ये गधा है। ला हादा हिसानुन, ला माने नहीं, हादा माने ये, हिसानुन माने घोड़ा। आपने अभी घोड़े की अरबी फरसुन ही पढ़ा होगा, ठीक है, फरसुन ही पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर हिसानुन के माना भी बता रहे हैं, घोड़ा होता है, ठीक है। हादा हिमारुन क्या ये गधा है। ला हादा हिसानुन नहीं ये घोड़ा है, ठीक है। वमा हादा और ये क्या है। कितने अच्छे अंदाज में साहिब किताब ने इस किताब को तरतीब दिया है। वमा हादा और ये क्या है। करें हादा जमलुन ये ऊंट है, क्या है, हादा जमलुन ये ऊंट है। मा हादा ये क्या है। करें हादा दीकुन ये मुर्गा है। एक होता है दजाजतुन और एक होता है दीकुन, तो दीकुन के माने होता है मुर्गा और दजाजत के माने होता है मुर्गी। मा हादा ये क्या है। हादा दीकुन ये मुर्गा है, दीकुन माने बच्चों मुर्गा। मन हादा ये कौन है। हादा मुदर्रिसुन ये उस्ताज है, ये टीचर है। हाँ, मन हादा ये कौन है। हादा मुदर्रिसुन ये क्या है, टीचर है, ये उस्ताज है, ठीक है। अपने उस्ताज की अरबी मुअल्लिम भी पढ़ी होगी, नहीं, उस्ताज की अरबी उस्ताज भी आती है, लेकिन यहाँ पर मुदर्रिसुन को जिक्र किया गया है। हादा कमीसुन क्या ये कमीस है। ला हादा मिंदीलुन नहीं ये रुमाल है। मिंदीलुन माने बच्चों क्या होता है, रुमाल, टुवाल जिसको बोलते हैं। लहादा मिंदीलुन, लहादा मिंदीलुन नहीं ये रुमाल है। इक़रा व उक्तुब और इसको पढ़ो और लिखो, ठीक है। मा हादा इक़रा व उक्तुब का मतलब ये होता है कि उक्तुब का मतलब लिखो, यानी इस पर ज़बर ज़ेर भी लगाओ, और इक़रा के माने पढ़ो, तर्जमा भी करो। मा हादा, ठीक है, मा हादा ये क्या है। हादा कलमुन ये कलम है। अब कोई कलमुन कह दे तो ये गलत है, ठीक है, कोई किलमुन कह दे तो ये गलत है। मा हादा ये क्या, हादा कलमुन ये कलम है, ठीक है। हादा कल्बुन ये कुत्ता है। मन हादा ये कौन है। हादा तबीबुन ये डॉक्टर है। हादा जमलुन ये ऊंट है, हादा जमलुन ये ऊंट है। हादा कल्बुन क्या ये कुत्ता है। ला हादा कित्तुन नहीं ये बिल्ला है। ला हादा कित्तुन नहीं ये बिल्ला है। हादा देकुन क्या ये मुर्गा है। नाम हाँ ये मुर्गा है। हाजा हिसानुन, हाजा हिसानुन क्या ये घोड़ा है। ला हादा हिमारुन नहीं ये गधा है। हादा मिंदीलुन ये रुमाल है, ठीक है। हादा वलदुन क्या ये लड़का है। नाम लड़का है, नाम यानी हाँ है। मन हादा ये कौन है। हादा रजुलुन ये आदमी है। चलें, सबक नंबर 1 हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल सबक नंबर 2 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग हमारे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमारे काम को पाए तक मिल तक पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम।